بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب اور بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے وہ بہت اداس رہتے۔ میں بہت افسردہ ہوں، آخر ہمارا کوئی بچہ کیوں نہیں؟ میری بھی یہی خواہش ہے، بے شک وہ ہیج ہاگ ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں وہی ملا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے ہاں ایک پیارا سا لڑکا پیدا ہوا، مگر اس کی کمر پر نوکیں ہی نوکیں تھیں۔ وہ خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ انہوں نے بچے کا نام اسپائک رکھا۔ باپ اپنے بچے کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر اسپائکس کی وجہ سے نہیں لگا سکتا تھا۔ جھولے میں سلانے سے بھی اس کو نوکیں زخمی کر سکتی تھی۔ اس کے لیے انہیں انگیٹھی کے آگے گھاس کا بنا بستر بنانا پڑا۔ نوکوں کی وجہ سے روز زخمی ہوتا، مگر پھر بھی اس کے ماں باپ نے بہت احتیاط سے اس کی پرورش کی۔ خدا نے ہماری دعا سن لی۔ یہ بچہ ضرور ہمارے لیے خوش بختی لائے گا۔ یہ سچ تھا کہ اسپائک کی پیدائش سے خوش بختی خود بوڑھے میاں بیوی کے گھر آنے لگی۔ ان کی فصل وافر مقدار میں اگتی، گودام دانوں اور مال مویشی سے بڑھنے لگا اور وہ روز بروز امیر ہونے لگے۔ بچہ بڑا ہو کر ایک ذہین اور ہینڈسم نوجوان بن گیا، مگر اس کی کمر پر نوکوں کی ایک تہ تھی جس کی وجہ سے اس کو روز مرہ کے کام میں مشکل ہوتی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسپائک گھاس کے بنے بستر پر ہی سوتا کہ کہیں نوکیں اس کو زخمی نہ کر دیں۔ اس کی عجیب و غریب شکل کی وجہ سے کوئی اسپائک کا دوست نہ بنتا، ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب بھی نہ آتا کہ کہیں اس کی نوکیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں، کون ایسے شخص سے دوستی کرنا چاہے گا جس کی کمر کانٹوں سے بھری ہو؟ یہ سچ ہے، میں ایک ہیج ہاگ ہوں۔ اسپائک کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے لیے ایک لوہے کا مرغا اور باجا بنائے گا۔ اے خدایا، میری دعا قبول کر اور اس لوہے کے مرغے کو میرے بیٹے کا بہترین دوست بنا دے تاکہ اس میں خود اعتمادی آ سکے۔ ایک کرشمہ ہوا۔ جب اسپائک لوہے کے اس مرغے سے ملا تو وہ بالکل کسی بھی جاندار جانور کی طرح ہل سکتا تھا۔ جب اس کا باپ مرغے کو اس کے پاس لے کے آیا تو وہ بالکل ایک حقیقی جانور بن گیا۔ ہیلو مالک، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہ ناممکن ہے۔ تب سے لوہے کا مرغا اسپائک کا ایک اچھا دوست بن گیا۔ وہ بہت وفادار اور بہادر تھا۔ لوہے کے باجے نے بھی اسپائک کو بہت خود اعتماد بنا دیا۔ امی، ابو، میں جنگل میں جا کر آپ دونوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ گو کے والدین فکر مند تھے، مگر اسپائک نے ان کو منا ہی لیا۔ اسپائک بھیڑوں کو لے کر جنگل گیا۔ وہ لوہے کے مرغے پر بیٹھ کر باجا بجانے لگا جس کی آواز بہت اونچی تھی۔ شام کو وہ بھیڑوں کو گھر واپس لے آیا۔ اس کی وجہ سے بھیڑیں اب صحت مند ہونے لگیں۔ ایک دن اچانک بادشاہ اور اس کے سپاہی جنگل میں آ نکلے۔ ایک طاقتور بادشاہ جنگل میں کھو گیا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ سلطان معظم، یہ راستہ تو آپ نے ہی چنا تھا۔ جی ہاں جناب، بالکل ہماری غلطی ہے۔ اب تم لوگ یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈو گے؟ ایک باجے کی آواز آ رہی ہے، اس کا پیچھا کرو۔ وہ ایک ایسے نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے جس کی پیٹھ نکیلے کانٹوں سے بھری تھی اور وہ ایک لوہے کے مرغے پر بیٹھ کے باجا بجا رہا تھا۔ نوجوان، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور بھوک سے برا حال ہے، میری مدد کرو۔ اسپائک نے اپنا کھانا ان سب پہ بانٹ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً سے سارا کھانا کھا گئے۔ بہت شکریہ نوجوان، لیکن یہ بتاؤ تمہاری کمر پہ یہ سب کیا ہے؟ جناب عالی، میں اسپائک ہوں، سب مجھے ہیج ہاگ مین کہتے ہیں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں ایسا ہی ہوں۔ ہیج ہاگ اسپائک، میرا مطلب ہے نوجوان، اگر تم یہاں سے نکلنے میں ہماری مدد کرو تو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ جناب، مگر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں بس چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے باتیں کرے اور میرے ساتھ زندگی گزارے۔
ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपनी बेटी शहजादी मिला की शादी तुमसे कर दूंगा, मगर उस सूरत में कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालो। स्पाइक बेहद खुश हुआ। उसने खुशी खुशी बादशाह को जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। उन सब ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुदा हाफिज कहा। मालिक, ये बादशाह मुझे ठीक नहीं लग रहा, आपको एहतियात करनी चाहिए। फिक्र मत करो, वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। फिर स्पाइक अपने मुर्गे पर सवार होकर भेड़ों को वापस घर ले आया। जब बादशाह घर वापस पहुंचा तो शहजादी मिला खुशी खुशी मिलने आई। बादशाह ने उसे स्पाइक के बारे में बताया, मगर ये नहीं कि वो उससे मिला की शादी का वादा कराया है। एक नौजवान हेजहॉग जो लोहे के मुर्गे पर सवार खूबसूरत बाजा बजाता है, उसने जंगल से निकलने में आपकी मदद की। अब मैं खैरियत से घर वापस लौट आया हूँ, वो वादा पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बेटी एक हेजहॉग से कैसे शादी कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने यहाँ आने की जुर्रत की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगर तुम लोग हेजहॉग मैन को यहाँ आते देखो तो उसे मार कर भगा देना। जहाँ तक स्पाइक की बात है तो वो बादशाह के वादे से बहुत खुश था। अगले दिन उसने अपने वालिदैन को खुदा हाफिज कहा और निकल पड़ा। अपने मुर्गे पर सवार बाजा बजाते हुए वो जल्द ही महल पहुँच गया, मगर मुहाफिजों ने उसे फौरन रोक लिया। मैं स्पाइक हूँ, मैं वादे के मुताबिक शहजादी से मिलने आया हूँ, बादशाह को खबर कर दीजिए। तुम्हारे जैसे बदशक्ल शख्स को बादशाह से मिलने की जुर्रत कैसे हुई? बादशाह कभी तुमसे नहीं मिलना चाहेंगे, दफा हो जाओ। मुहाफिजों ने नेज़ों से स्पाइक को धमकाया। उन्होंने तीरों से भी स्पाइक का निशाना लिया, मगर तीरों ने स्पाइक का कुछ न बिगाड़ा। वो फौरन नीचे गिर गए। यानी बादशाह ने मुझसे झूठा वादा किया था, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा। मालिक, मैंने आपको खबरदार किया था। स्पाइक बहुत गुस्से में था। उसने बाजा निकाला और जोर जोर से बजाने लगा। हे तुम, रुक जाओ फौरन, हम बहरे हो जाएंगे। अंदर शहजादी मिला ने ये शोर सुन लिया। उसने खिड़की के पास आकर नीचे देखा। नीचे एक हेजहॉग आदमी लोहे के मुर्गे पर सवार गेट के आगे बाजा बजा रहा था। वो बहुत एक्साइटेड थी और नीचे जाने ही वाली थी जब बादशाह ने उसे रोक लिया। मिला, तुम बाहर नहीं जा सकती। क्यों बाबा? फिर बादशाह ने उसको सारी कहानी सुनाई, ये भी कि उसने स्पाइक से मिला की शादी का वादा कर रखा था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अच्छा बादशाह वादा जरूर पूरा करता है और स्पाइक ने आपकी मदद की भरपूर कोशिश की थी। चुप हो जाओ, मैं फैसला कर चुका हूँ, ये बदशक्ल हेजहॉग अभी यहाँ से चला जाएगा। गेट पर बहुत से सिपाही स्पाइक को रोकने के लिए नेज़े और तीर इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी स्पाइक्स की वजह से उसे कोई नुकसान न पहुँचा था। हमें अब जाना होगा। बाबा, ऐसा मत कीजिए। वादा तोड़ना और ऐसे शख्स पर तीर बरसाना जिसने आपकी जान बचाई थी बहुत बुरी बात है। मैं कभी ऐसे बदशक्ल इंसान को अपनी बेटी का शौहर नहीं बनने दूंगा। जंगल में जाकर स्पाइक और बुर्गे ने मुकाबले के बारे में सोचा। मैं जानता हूँ क्या करना है, मेरे पीछे आओ, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। उस रात जब सारा महल खामोशी में डूबा था, मुर्गे ने स्पाइक के प्लान पर अमल किया। वो उड़कर बादशाह के कमरे में गया और शोर मचाने लगा। क्या? ये क्या है? क्या कोई हमला हुआ है? तुम गंदे मुर्गे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? निकल जाओ। झूठे बादशाह, मेरे मालिक से किया हुआ वादा पूरा करो। मुहाफिजो, इस मुर्गे को निकालो यहाँ से। जैसे ही सिपाही आए, मुर्गा फौरन उड़ गया, मगर जैसे ही बादशाह दोबारा सोने लगा, वो वापस आकर शोर मचाने लगा। झूठे बादशाह, वादा पूरा करो। बिल्कुल इसी तरह मुर्गे ने सारी रात महल में यही शोर मचाए रखा और बादशाह ना ही सिपाहियों को सोने दिया। थकावट से उनकी आंखें सूज गई थीं। दिन के वक्त स्पाइक ने अपने बाजे से शोर मचा के सबको परेशान कर दिया। बादशाह शदीद गुस्से में था, मगर सिपाही उसका कुछ ना बिगाड़ सकते थे। उसकी नोकों की वजह से तीर और नेज़े उसको जख्मी नहीं कर सकते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिरकार बादशाह को कमजोर कर दिया।
शहजादी अपने वालिद को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने स्पाइक को महल बुलवाकर सुलह की दावत दी। लोहे का मुर्गा बहुत मगरूर और शान से महल के दरवाजे के ऊपर बैठा था। शहजादी मिला, मैं आपको शादी करने पे मजबूर नहीं करूंगा, मगर आपके बाबा को ये बताने के लिए कि वादा पूरा करना बहुत जरूरी है, मुझे ये करना पड़ा। शहजादी मिला को स्पाइक बहुत पसंद आया। उसने उसे एक रात महल में रहने को कहा। ये देखकर कि रात हो चुकी थी, स्पाइक मान गया और कमरे में आ गया। तब मुर्गा भी वापस लौट आया। तुम हमेशा उसके साथ साथ रहते हो, तुम्हें जरूर पता होगा क्या उसे ये स्पाइकी कवर हर वक्त पहनना पड़ता है। असल में ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसे मैं कहता हूँ। आज रात चांद पूरा था और स्पाइक ने हमेशा की तरह अपने स्पाइकी कवर उतार कर एहतियात से साथ रखा, जैसे वो सच में उसके जिस्म का कोई हिस्सा था। जैसे ही स्पाइक सोया, मिला आज बाहर इंतजार कर रही थी। फौरन अंदर गई और उसका स्पाइकी कवर उठाकर जलते चूल्हे में फेंक दिया। शहजादी ये आप क्या कर रही हैं? ये हेजॉक स्किन बचपन से मेरे साथ है, बिल्कुल जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा। नहीं स्पाइक, मैं तुम्हें आखिर इससे निजात दिला रही हूँ। अब जरा खुद को महसूस करो। ये एहसास तो बहुत जबरदस्त है। मैं अभी भी वैसे ही मजबूत हूँ, बल्कि इससे जाने के बाद ज्यादा पुरसुकून। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी मिला, मेरी मदद करते हुए आपने खुद को भी जख्मी किया। कोई बात नहीं, कम से कम मैं इस काबिल थी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। मिला ने बादशाह का ख्याल रखा और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। उसने बादशाह को स्पाइक की अच्छी शख्सियत के बारे में भी बताया। आखिरकार बादशाह इस सच्चाई को मान ही गया। शायद तुम ठीक कहती हो, मुझे स्पाइक को उसके ज़ाहिरी होलिया की वजह से जज नहीं करना चाहिए। उसने अपने स्पाइक्स की मदद से मेरी फौज को शिकस्त दी। मुझे उसकी बहादुरी और जहानत को मानना पड़ेगा। और जब स्पाइक अंदर आया, उसकी शक्ल सूरत ने बादशाह को हैरान कर दिया। बाबा, जब से हम मिले हैं हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मेहरबानी करके हमें शादी की इजाजत दीजिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब स्पाइक की वो हेजहॉग स्किन बाकी ना रही थी। वो शहजादी मिला और बाकी लोगों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगा।